Okay, dear students, now we are coming to the last part. I used every way I know to overcome the fear, but it held me firmly in its grip. मैंने कोशिश तो काफ़ी की डर से बाहर आने की, पर मैं निकल नहीं पाया. Finally, on October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं 5 दिन प्रैक्टिस करता था. A rope attached week an hour each day. Okay, the instructor put a belt around me. मेरे कमर में उन्होंने एक बेल्ट बांध दिया था. A rope attached to the बेल्ट में उन्होंने एक रोप लगा दी थी. Went through a pulley and ran over the overhead cable. ऊपर के तार में दूसरा हिस्सा रोप का उन्होंने बांध दिया था. इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर बैलेंस रहेगी. ठीक है, वो पानी में गिरेंगे नहीं, डर नहीं लगेगा. देखो मतलब हाउ इंटेलेक्चुअली द ट्रेनर मैनेज्ड ऑल द थिंग. Okay, through the pulley and ran over the cable. He held on to the end of the rope. एक किनारे को रोप को वो पकड़ते थे. And we went back and forth across the pool. हम सामने पीछे खाली आगे पीछे हमें प्रैक्टिस करना होता था. How just hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool a bit of the panic seized me. हर बार मुझे थोड़ा सा डर लगा. Panic seized me मतलब controlled me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. हर बार वो मुझे रिलैक्स करते थे और मैं पानी के अंदर जाने में नॉर्मल हो रहा था. It was 3 months before the tension began to slack. बट फिर भी 3 महीने लग गए थे. टेंशन began to slack मतलब स्लो डाउन. टेंशन कम होने में 3 महीने लगे थे. Then he taught me to put my face under water and exhale as I told you. ओके, उन्होंने मुझे सिखाया पानी के नीचे सांस कैसे एक्सेल करना है. उल्टा मत लिख देना, पानी के नीचे सांस छोड़ना. ओके, टू लीव ब्रेथ अंडर द वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन. एंड टू रेज माई नोज एंड टू इनहेल अबव द वाटर. आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 of times. Bit by bit मतलब step by step. I shed part of the panic and seized me when my head went under water. फिर भी मुझे डर लगा जब एक बार मैं अपने सर को पानी के अंदर डाला. Next he held me at the side of the pool. उसके बाद उन्होंने मुझे पुल के किनारे ले गए. And had me kick with my legs. और मुझे सिखाया उन्होंने कि कैसे पैरों को किक करना चाहिए. Okay, how to kick the legs. For weeks I did just that. हफ्तों तक हमने वही प्रैक्टिस की, खाली किकिंग प्रैक्टिस की. एंड फाइनली आई कुड कमांड ऑन देम. दस पीस बाई पीस ही बिल्ड अ स्विमर. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ऐसे ही पीस बाई पीस मतलब स्टेप बाई स्टेप उन्होंने मुझे एक स्विमर बनाया. और जब उनका काम कंप्लीट हो गया, वी पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल्ड. उसके बाद उन्होंने सारे स्टेप को एकत्रित किया और बोला अब तुम स्विम करो. ओके, इंटीग्रेटेड मतलब all together. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक करो. I did. The instructor was finished. Beautiful line. And this is called hyperbole. Instructor was finished मतलब the task of the instructor is finished. But I was not finished मतलब my task is not finished yet. It has to be begun again. I still wonder if I would be terror stricken when I was alone in the pool. मैं जब अकेले पुल पे रहता था मुझे डर लगता था. I tried it. I swam the length up and down. मैं पेसिंग जिसे कहते हैं, मैं उधर से उधर इधर वापस आया. Tiny vestiges of the old terror. Tiny means small. Vestiges मतलब a particle. पुराने डर का एक छोटा सा हिस्सा. A small part of the old terror would return. But now I could frown and say, and to the terror trying to scare me. Means you are trying to scare me. आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर टेरर. Well, here's to you. Look, and off I would go for another length to the pool. This went on until July. मेरा ये एफर्ट जुलाई तक चला. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. इसीलिए न्यू हैम्पशायर के Wentworth लेक में मैं गया. I dived off मतलब मैंने डुबकी लगाई. I plunged off to a dock at Triggs Island. ट्रिग आइलैंड की तरफ मैं बढ़ता रहा. And swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. तो फिर कहाँ से कहाँ जा रहे देखो, ट्रिग आइलैंड की तरफ से वो Stamp Act Island की तरफ जा रहे हैं. I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. सारे स्ट्रोक मैंने कर लिया. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and I saw nothing but bottomless water. मैंने कुछ नहीं देखा, खाली unlimited water था. The old sensation returned in miniature. MINIATURE. miniature मतलब in small. थोड़े से संख्या में मेरा पुराना डर वापस आया. miniature in a small quantity. I laughed and said, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? Mr. Terror, आप मेरा क्या कर सकते हैं? I fled and I swam on. ठीक है, इट फ्लेड एंड आई swam on. डर भाग गया. फ्लेड, फ्ली का past tense. एस्केप्ड, डर भाग गया और मैं तैरने लगा.
येट आई हैड रेसिडुअल डाउट, रेसिडुअल मतलब सम पार्ट टू बी लेफ्ट, जो कुछ बचा हुआ है, फिर भी मेरा डर कुछ बचा हुआ था. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टीटन टू कॉर्नर्ड मिडोज, अप टू द कॉर्नर्ड ग्रीक ट्रेल टू मिडोज. ट्रेल मतलब इन द मिडल पार्ट ऑफ द माउंटेन, उसका जो ऊपर चढ़ने का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं. ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, मैं एक बार ग्लेशियर के मिड में भी आ गया था. द कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, मैं एक बार मिडो मतलब ग्रासलैंड, कहाँ की ग्रासलैंड, वार्म लेक के पास के ग्रासलैंड में भी मैं तैर रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड मतलब टुक अप माई क्लोथ्स, आई स्ट्रिप्ड मतलब जस्ट पुट अप माई क्लोथ, शेड अप माई क्लोथ्स एंड डाइव्ड इनटू द लेक, मैं लेक पे डाइव किया. एंड स्वम अक्रॉस, मैं तैरता रहा, टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डुक कॉर्पन यूज्ड टू डू. डुक कॉर्पन मीन्स द फेमस स्विमर. The Duke Carbon used to do. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. मेरी आवाज़ गिलबर्ट पिक के लेक में इको होता रहा. I had conquered my fear of water. मैंने अपने पानी का डर को कंट्रोल कर लिया था. The experience had a deep meaning for me. इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे लाइफ में. As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. जिन लोगों ने डर को कभी ना कभी महसूस किया है और उसको कंट्रोल किया है, वही जानते हैं कि डर क्या होता है. In डेथ देयर इज़ अ पीस. हाँ, डेथ में भी पीस होता है, मतलब नेगेटिविटी में भी सुकून होता है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. खाली मरने का डर आदमी को नहीं लगना चाहिए था. इटसेल्फ रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. हमें खाली एक चीज़ से डर लगना चाहिए, वो है फियर नामक शब्द से, और किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. मैंने तो दोनों एक्सपीरियंस महसूस कर लिया. मैं तो ऑलमोस्ट मर ही रहा था, और उस मरने के बाद जो मेरे मन में डर पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसको भी मैंने महसूस किया था. द विल टू लीव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी. पर मेरी जीने की चाहत मेरी इंटेंसिटी, मेरे विल पावर में ही था. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे रिलैक्स महसूस हुआ. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स. ओके, ट्रेल्स मतलब पाथ, उन रास्तों पे मैं दोबारा चलने लगा था फ्री होके, शांति से, सुकून से. एंड क्लाइम द पिक्स एंड ब्रश असाइड फियर. मैं तो पहाड़ी पे भी चढ़ गया था और मेरे डर को मैंने एक तरफ किनारा कर दिया था. ब्रश असाइड मतलब रिमूव. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर डीप वाटर.